Hello students, it is sixth lecture of topology of real line which includes second lecture of open and closed sets. इस सेकंड लेक्चर ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट्स में हम यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स देखेंगे, यूनियन ऑफ थ्री ओपन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ओपन सेट्स, union of two closed sets, union of three closed sets, intersection of two closed sets, intersection of three closed sets वगैरह वगैरह. तो स्टार्ट हम कर रहे हैं. एक सब हेडिंग हम डालना चाह रहे हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ open and closed sets, open and closed sets of two open and two closed sets. ऐसा थ्योरम नंबर 1, union of two open sets is open. Union of two open sets is open. ये पहला रिजल्ट है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं. लेट G1 प्रॉपर सबसेट R, G2 प्रॉपर सबसेट R बी टू ओपन सेट्स. देन ओपन सेट्स पिछले वीडियो में पढ़े थे, मैं फिर एक बार लिख दे रहा हूं. ओपन सेट्स G proper subset R is called, is said to be an open set if it is neighborhood of each of its points. Each of its points. That is, for each x belonging to G, G is neighborhood of x. है ना, यही तो बात है. G अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. फिर इसको अर्थ यही है, अर्थात फॉर ईच x बिलोंगिंग टू G. अब नेबरहुड का डेफिनेशन यहां लगा दे रहे हैं. G is neighborhood of x means there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is contained in G. तो आप G is called an open set if for each x belonging to G there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is contained in G. ये भी डेफिनेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं. हमने डेफिनेशन को नेबरहुड के डेफिनेशन से कनेक्ट कर दिया, ओपन सेट के डेफिनेशन को नेबरहुड के डेफिनेशन से कनेक्ट कर दिया. तो ये इस तस्वीर सामने आई. देन वी हैव टू प्रूव दैट G1 यूनियन G2 which is proper subset of R is again, या अगेन ना लिखिए, इज एन ओपन सेट लिख दीजिए. इज एन ओपन सेट, यह भी ओपन सेट होगा. अब दो प्रॉपर सबसेट हैं, इसका यूनियन तो आर के बराबर भी हो सकता है, इसलिए यहां पे ये पॉसिबिलिटी भी आप दिखा दीजिए. अब देखो ये डेफिनेशन लिखा है, G1 यूनियन G2 को थोड़ी देर के लिए आप G समझ लीजिए और समझ लीजिए कि आपको सिद्ध करना है G ओपन है. तो G ओपन कब होगा? When for each x belonging to G there exists a positive number epsilon however small such that open interval centered at x is subset of G. यानी ये घटना घटनी है G के प्रत्येक पॉइंट के लिए. तो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट लीजिए. लेट x be any point of G1 union G2, then by set theory x belongs to G1 or x belongs to G2. दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं.
दोनों को ही हम अलग अलग देखेंगे। सिंस G1 is an open set, therefore for x belonging to G1 there exists epsilon 1 greater than 0 such that open interval x minus epsilon 1 x plus epsilon 1 is subset of G1, and so open interval x minus G1 x minus epsilon 1 x plus epsilon 1 is subset of G1 and G1 is subset of G1 union G2. Again, since यही चीज G2 के लिए ही लॉजिक लिखिए, since G2 is an open set, therefore for x belonging to G2 there exists epsilon 2 greater than 0 such that open interval x minus epsilon 2 x plus epsilon 2 is subset of G2, and so open interval x minus epsilon 2 x plus epsilon 2 is subset of G2 which is subset of G1 intersection G2. तो दोनों ही केस में ये था ना, x या तो G1 में होगा या तो G2 में होगा, तो चाहे x G1 में हो चाहे x G2 में हो, दोनों ही स्थितियों में हमारे पास क्या हाथ लग रहा है, x पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल जो G1 यूनियन G2 का सबसेट है। देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट x विच इज सबसेट ऑफ G1 यूनियन G2। thus in either case there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of G1 union G2। कहीं हमने एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 1 लिख दिया है, इस वाले में एप्सिलॉन 2 लिख दिया है। ठीक है, समझ रहे ना? तो आपने कहीं लिख रखा था लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 यूनियन G2, तो G1 यूनियन G2 के आर्बिट्रेरी एलिमेंट x के लिए जो ये इवेंट हो रहा है वो उसके सारे एलिमेंट के लिए होगा, तो जनरलाइज करके लिखिए। हेंस फॉर ईच x बिलोंगिंग टू G1 यूनियन G2 देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of G1 union G2, and so और इस तरह G1 union G2 is an open set, ये था इसका प्रूफ। ये लॉजिकल मैथमेटिक्स की दुनिया है बाबू, ये थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स की दुनिया है बाबू। इसे लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए। लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और जो इसे केवल रीडिंग मारोगे तो नहीं समझ में आएगा, और अगर कुछ समझ में आ गया तो कपूर की तरह उड़ जाएगा। अब इसी से एक रिजल्ट हम डिड्यूस करेंगे, और इसी को एक्सटेंड करके एक रिजल्ट और भी हम समझ लें। तो पहला स्टार, similarly we can prove that union of three open sets is open। तो यहीं पे एक जिज्ञासा मन में पैदा होती है कि दो ओपन सेट्स का यूनियन ओपन, 3 ओपन सेट्स का यूनियन ओपन, 4 ओपन सेट्स का यूनियन ओपन, तो यह संख्या हम कहां तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा, अभी हम नहीं बताएंगे। दूसरी बात, नंबर लाइन खींच दिया हमने।
ए बी इस तरीके से प्लॉट कर दिया। क्लोज्ड इंटरवल ए बी हमें लेना है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी is closed by nature because its complement is open, because its complement कौन है इसका कॉम्प्लीमेंट? क्लोज्ड इंटरवल ए बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू आर माइनस क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल टू, ये पूरा नंबर लाइन लिखिए, इसमें से इतना हिस्सा हटा दीजिए बस। तो इधर से शुरू करें, माइनस इन्फिनिटी और ए को लेना है नहीं, ए इसमें है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यूनियन बी नहीं होगा, एक्सक्लूड माने ओपन और इन्फिनिटी। ये दिस इज एन ओपन इंटरवल, दिस इज एन ओपन इंटरवल, वी नो दैट एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, दिस इज एन ओपन सेट, दिस इज एन ओपन सेट, वी नो दैट यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, देयरफॉर दिस इज ओपन, इज ओपन। अब पूरा सेंटेंस पढ़िए, यहां से यहां तक फुल स्टॉप लगाए। क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन, ये हम लोग प्रूव किए थे, और एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड, ये इस तरीके से हो गया। थ्योरम नंबर 2, intersection of two open sets is open. Intersection of two open sets is open. Proof. Let G1 proper subset R, G2 proper subset R be two open sets, then we have to prove that G1 intersection G2 which is properly contained in R is open। फिर वही चीज, ओपन सेट कब होगा? जब इसके हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो इसी का सबसेट हो, हर पॉइंट पर। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पर यह घटना घटा के दिखाइए। Let X be an arbitrary point of G1 intersection G2. Then by set theory, X belongs to G1 and X belongs to G2. यूनियन वाले में और था, दो पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, इसमें ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। फिर वही चीज, सिंस G1 इज ओपन एंड X बिलोंग्स टू G1, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट X व्हिच इज सबसेट ऑफ G1। ऐसे G2 के लिए चलो लिखते हैं इसको, पहले समझ लीजिए। G1 ओपन सेट है ना, इसलिए G1 के इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो G1 का सबसेट है। G2 ओपन है, इसलिए G2 के इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो G2 का सबसेट होगा। इतनी बात समझ लिया आप, इसको पहले लिखा जाए। सिंस इकट्ठे लिख रहे हैं क्योंकि और नहीं ना कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। सिंस G1 एंड G2 आर ओपन सेट्स, therefore for X belonging to G1 and X belonging to G2 there exists epsilon 1 greater than 0 and epsilon 2 greater than 0 such that open interval X minus epsilon 1 X plus epsilon 1 is subset of G1 and open interval X minus epsilon 2 X plus epsilon 2 is subset of G2। ऐसा
ये इंटरवल माने नंबर लाइन के टुकड़े, पोर्शन ऑफ नंबर लाइन। एक्स पर सेंटर्ड ये भी है, एक्स पर सेंटर्ड ये भी है। इसकी लेंथ एप्सिलॉन 1 राइट, एप्सिलॉन 1 लेफ्ट, तो कुल लेंथ कितनी होगी 2 एप्सिलॉन 1, इसकी लेंथ 2 एप्सिलॉन 2। तो अब समझने के लिए हम एप्सिलॉन 1 लेंथ को छोटी लेंथ मान ले रहे हैं। एक्स प्लस एप्सिलॉन 1, एक्स माइनस एप्सिलॉन 1, एक्स प्लस एप्सिलॉन 2, एक्स माइनस एप्सिलॉन 2। तो ये वाला जो ओपन इंटरवल है और ये वाला जो ओपन इंटरवल है, ध्यान से देख लीजिए समझने के लिए। ए भाई एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 में कोई तो छोटा होगा, तो हमने मान लिया कि एप्सिलॉन 1 छोटा है, तो क्या होगा, ये जो छोटी लेंथ वाला इंटरवल है ना, मान लीजिए एप्सिलॉन 1 छोटा है, तो ये जो छोटी लेंथ वाला इंटरवल है ये G1 का सबसेट है। ये जो छोटी लेंथ वाला इंटरवल है ये बड़ी लेंथ वाले इंटरवल का सबसेट है, बड़ी लेंथ वाला इंटरवल G2 का सबसेट है, इसलिए ये G2 का सबसेट है। इसका मतलब जो छोटी लेंथ वाला इंटरवल है वो G1 का भी सबसेट है, G2 का भी सबसेट है, और इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2 का भी सबसेट होगा। समझ बात आ गई। अब इसी को देखो लिखेंगे कैसे। This implies that open interval x minus epsilon, x plus epsilon is subset of G1, comma open interval x minus epsilon, x plus epsilon is subset of G2, where epsilon is equal to छोटी लेंथ minimum of epsilon 1 and epsilon 2। माने हमें पता नहीं ना, इसमें हमको कहाँ मालूम है कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 में से कौन छोटा है। तो जो भी छोटा है, जो मिनिमम है इन दोनों में, उसको हमने एक नया नोटेशन दे दिया एप्सिलॉन 1। तो ये जो x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन है, ये छोटी लेंथ वाला इंटरवल है। तो अभी हमने आपको समझाया ना कि जो छोटी लेंथ वाला इंटरवल होगा वो G1 का भी सबसेट होगा, G2 का भी सबसेट होगा, और इसलिए ये छोटी लेंथ वाला जो इंटरवल है x पर सेंटर्ड, ये सबसेट होगा G1 का भी G2 का भी, माने दोनों के इंटरसेक्शन का। ये अब इस पूरी बातचीत में x क्या चीज है, x इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, उसके लिए ये घटना घट रही है। तो इसको हम जनरलाइज कर दें। हम देयरफॉर फॉर एवरी या फॉर ईच x बिलोंगिंग टू G1 इंटरसेक्शन G2 देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट open interval x minus epsilon, x plus epsilon is subset of G1 intersection G2, and hence G1 intersection G2 is open set। यही प्रूव करना था। इसको एक्सटेंड करेंगे, जैसे आपने 2-2 लेके किया ना G1 G2, ऐसे 3-3 लेके करिए, तो फिर ये तस्वीर 3 हो जाएगी ना। तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 में से सबसे छोटी लेंथ वाला भी तो कोई होगा, और जो सबसे छोटी लेंथ वाला x पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल होगा वो G1 का भी सबसेट होगा, G2 का भी सबसेट होगा, G3 का भी सबसेट होगा, और इसलिए तीनों के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। सिमिलरली, मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस समझा के छोड़ दे रहा हूं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओपन सेट्स इज ओपन। तो यहां भी वही कौतूहल, वही जिज्ञासा है कि 2 ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ओपन, 3 ओपन इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओपन सेट्स इज ओपन। तो प्रश्न उठता है कि कितने ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन होगा, फाइनाइटली मेनी या इनफाइनाइट नंबर। तो ये कौतूहल आपका हम बाद में शांत करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम 2-2 3-3 का केवल करके देख रहे हैं, 2-2 का 2-2 कर रहे हैं, 3 ऐसे ही लिख दे रहे हैं। Next, union of 2 closed sets is closed. Theorem number 3. Union of 2 closed sets is closed. Proof. देखो, क्लोज्ड सेट्स का कोई भी थ्योरम होगा वो कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से ओपन पर लद जाएगा।
इसीलिए पहले ओपन ओपन का हमने प्रूव किया, अब इसी पर लद के क्लोज सेट वाला थ्योरम प्रूव किया जाएगा। कैसे, देखिए, लेट कैपिटल F1 एंड कैपिटल F2 बी टू क्लोज्ड सेट्स, देन बाय डेफिनेशन अगर ये क्लोज्ड है तो इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, F1 कॉम्प्लीमेंट एंड F2 कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे हो गए, ओपन, आर ओपन सेट्स। वी नो दैट intersection of two open sets is open, therefore लिख दे रहा हूं, समझ लीजिए, बहुत आसान सी बात है। therefore F1 complement intersection F2 complement is open. This implies that F1 union F2 whole complement is open by De Morgan's law. ये सब डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह आपको शुरू में ही पहले वीडियो में सब बताए थे। F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट होता है। दिस इज इक्वल टू दिस बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब बताइए, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब वो सेट क्या हुआ, क्लोज्ड। दिस इंप्लाइज दैट F1 यूनियन F2 इज क्लोज्ड। अब देखिए कैसे प्लानिंग से इसको प्रूव किया गया, बहुत ध्यान से। यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड प्रूव करना था। दो क्लोज सेट्स लिया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट हम ओपन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब ओपन का रिजल्ट हमको मालूम है, कौन सा रिजल्ट मालूम है, ध्यान देना। यूनियन प्रूव करना है ना क्लोज्ड के लिए, तो हम उल्टा लेंगे इंटरसेक्शन। ये देखो वी नो दैट इंटरसेक्शन। अगर यहां यूनियन प्रूव करना है तो यहां पे हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट में है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन लेंगे, तभी वो डिमार्गन के नियम से यूनियन में यू कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसका तरीका है प्रूव करने का। थ्योरम नंबर 4, इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, लेकिन उसके पहले इसको भी एक्सटेंड कर दो भाई। यूनियन ऑफ 3 क्लोज सेट्स इज ऑल्सो क्लोज्ड। प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही, बस एक संख्या बढ़ा देनी है। यूनियन ऑफ 3 क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। ये 3 की चर्चा हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपके मन में एक प्रश्न कौंधे कि 2 क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड, 3 क्लोज्ड सेट्स का यूनियन क्लोज्ड, तो आखिर में संख्या कहां तक बढ़ सकती है? कितने क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड होगा? फाइनाइटली मेनी क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड होगा? ये हम कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इस कौतूहल का जवाब हम आपको देंगे अगले वीडियो में। थ्योरम नंबर 4, अब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ 2 closed sets is closed. Let F1 and F2 be 2 closed sets. Then F1 complement and F2 complement are open sets. We know that. अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या करते हैं, यूनियन। We know that union of 2 open sets is open. आप नहीं जानते हैं, आज ही तो पढ़े हैं। Union of 2 open sets is open. Therefore F1 complement union F2 complement is open. और इसकी वैल्यू ये होती है ना, इसकी वैल्यू ये होती है, यहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, इज ओपन। तो अब ये किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है जो कि ओपन है, इसका मतलब ये सेट क्या होगा, क्लोज्ड। तो ये हो जाएगा F1 इंटरसेक्शन F2 इज क्लोज्ड। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। इंटरसेक्शन ऑफ 3 क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। है ना मजेदार? मजा आया होगा निश्चित आपको।
वीडियो को लाइक करिए, और अगले वीडियो में यही हम एक्सटेंशन की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कितने ओपन सेट्स का यूनियन ओपन हो सकता है, कितने ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन हो सकता है, कितने क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड हो सकता है, कितने क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन क्लोज्ड हो सकता है। ये बहुत ही जिज्ञासा वाली बात है ना, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।